you all can come down over here. So keeping that in view, so this time we have Rohit with us. Rohit is a college friend of mine. So I will have Ritu quickly introduce Rohit and then let's understand from him the topic for today. He is a very famous Amazon bestseller author as well. Yeah. कि जैसे सर ने बताया है मिस्टर रोहित गोयल सर के कॉलेज फ्रेंड है एक इंजीनियर क्या क्या कर सकता है दैट इज व्हाट ही हैज प्रूव्ड इट ही इज अ वेरी गुड कुक ही इज एन लाफ्टर योगा थेरेपिस्ट ही इज अ यू नो व्हाट यू से ही इज अ राइटर he has been a leader who has created lots of leaders and he has a very good career in automobile. He is a person who makes yoga filled with laughter. He has got his best-selling book Fall Don't Fail, which is not a book but a way where layoff can be very very humorous and hopeful. There is one more coming soon. He'll be launching Gold Standard Leadership, a book that unravels 36 traits of credible leadership, seasoned with anecdotes and a Bollywood touch. And he has been a person who has been associated with automobile industry from last 20 years. 20 years, and like companies like Maruti, Tata, and a lot of other companies, and where he has created leaders and who are really doing very well. So here's from Rohit. Okay. Am I audible to the backbenchers? I was a backbencher throughout my life. इधर आ जाओ तुम लोग. मैंने सुना है बैकबेंचर्स जो होते हैं ना वही लीडर्स बनते हैं. Throughout. पीछे देखते रहते हैं ना लोग आगे वाले क्या कर रहे हैं. आगे वाला देख नहीं सकता है पीछे वाले क्या कर रहे हैं. So, thank you very much for the wonderful introduction that Ritu ma'am has given. Very embarrassing to hear so much about you. आपने यहाँ काम किया है, आपने इंजीनियरिंग करी, आप लिखते हो, आप लाफ्टर योगा करते हो, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है. बट हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें करी है मैंने. आई एम श्योर आप सब भी अपनी वही जर्नी, उसी तरह की जर्नी क्रिएट करने जा रहे हैं. मैंने और आशीष ने साथ में इंजीनियरिंग करी है. एनी इंजीनियर्स हियर? ओके ओके. एनी हॉस्टलाइट्स हियर? हॉस्टल में जो रहे हैं? अच्छा ओके. गुड गुड गुड. सो हाँ फाइन. तो हॉस्टलाइट्स, हम इंजीनियर भी थे और हम हॉस्टलाइट भी थे, मतलब हॉस्टलर्स भी थे साथ में. सो वो एक अलग ही टाइप की बॉन्डिंग भी होती है. साथ में रेस्टिगेट भी हुए हैं. ये सौभाग्य मुझे 2 बार प्राप्त हुआ, आशीष को 1 ही बार प्राप्त हुआ है. सो ये है. बट हम पढ़ाई कर लेते थे, ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ठीक ठाक थे. सो मेरे को आपसे एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए. जस्ट एक क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द टीम ऑल्सो, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट आर देयर जनरल रोल्स, एक ब्रॉडली इन 30 सेकेंड्स टाइप्स. सो वो बोलते हैं ना कि आप जैसे होते हैं वैसी आप टीम बनाते हैं. तो हम लोगों ने ना यंग टीम बनाई हुई है. सो एवरेज एज ग्रुप ऑफ द पीपल हियर इज लाइक 25 और years. So when we hire anyone, we don't look up at their qualification. By the way, we look up at the passion. So we are a bunch of very creative, determined लोग हैं. लोगों के अंदर में sparks है. They come from a good family background. We always believe in one thing कि hire people from the business background because they understand the business. Business मतलब business नहीं होता, people with an ownership kind of a mindset. So we have people here in terms of a couple of people from graphics team, UI UX team, developers है, creative writers है, then we have social media team, then we have paid people analysts, then we have testers, then we have technical people, then we have HR. So it's a mix of around 15 odd different skills which are out here. Okay. Great. Thanks. So yes, I can see the team is very very young and very must be very energetic also, which I can make out from your faces and your body language. I will just quickly tell about the book thing because brands के साथ तो मैंने काम किया ही है. मारुति के साथ में काम किया है या जनरल मोटर्स के साथ में. In fact, I was regional manager for Maharashtra also when I was in Maruti. But brands के साथ तो आप काम करते हो, that is your part of your career. But one thing which happened with me is that I got laid off by General Motors.
बिकॉज जनरल मोटर्स डिसाइडेड टू क्विट इंडिया इन 2017 और एक दिन आके हमारे एमडी ने बोला कि कंपनी बंद हो रही है, 3 महीने के बाद में कोई इस कंपनी में नहीं रहेगा। तो बड़ा शॉकर था और ख़ास तौर से मेरे जैसे लोगों के लिए जो अपने करियर में बहुत ही फास्ट ट्रैक पे चल रहे थे और कभी फेलियर देखा ही नहीं था। प्रमोशंस होती गए, यंगेस्ट आरएम, यंगेस्ट डायरेक्टर, ये वो, तो सब कुछ यंगेस्ट में चल रहा था। और तो हमें लग रहा था कि बहुत कुछ हमें आता है और बहुत वैल्यूड है हम लोग मार्केट में और कभी कुछ इस तरह की चीज़ होगी नहीं। थ्रू आउट आवर लाइफ वी आर टोल्ड हाउ टू बी सक्सेसफुल, चाहे हम अपने घर में देख लें, चाहे अपने पड़ोस में देख लें, टीचर्स का देख लें, हर कोई हमें ये फीड कर रहा है हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बी सक्सेसफुल, राइट। कोई ये बात नहीं करता है कि व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू विल फेल, व्हेन यू फॉल, व्हेन यू डोंट गेट सक्सेस। हाउ टू डील विद फेलियर इज समथिंग विच इज़ लैकिंग इन द सोशल फैब्रिक। हमें कहीं से भी कोई ये बताने की कोशिश नहीं करता कि अगर तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम विच आई आइडेंटिफाइड व्हेन आई फेल्ड, व्हेन आई वाज लेड ऑफ बाय जनरल मोटर्स। आई हैड 2 kids, वी वर हैविंग आवर मंथली EMIs, खर्चे, ये वो। सो मनी वाज one part and second part is when we went out, and when I'm saying we, सो इट वॉज नॉट अ परफॉर्मेंस कि मेरी परफॉर्मेंस ख़राब थी या मैंने कोई इंटीग्रिटी का गलत काम कर दिया तो मेरी जॉब चली गई। मेरे साथ में 10,000 लोगों की जॉब चली गई क्योंकि कंपनी बंद हो गई, उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, मतलब उन 10,000 लोगों की। और मैंने अपने आसपास सब लोगों को देखा, मेरे सीनियर्स थे, मैं तो नेशनल हेड था, लेकिन हमारे ऊपर MD थे या हमारे जो जूनियर्स थे मेरी टीम में जो थे, सब भाग रहे हैं इधर उधर और जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट टू फाइंड जॉब। एंड एवरी वन इज़ एट वेरी गुड पैकेजेस। बड़ा उनको हमने मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, बड़ा हमने चढ़ा रखा था कि भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लोग हैं, राइट। बट व्हेन वी वेंट आउट इन द मार्केट एंड व्हेन वी ट्राई टू फाइंड जॉब, वी फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। मैनी ऑफ द पीपल डिडंट गेट द जॉब इटसेल्फ। उसका जब रीज़न एनालाइज किया, अब जब खाली हो आप तो रीज़न एनालाइज करते हो, मैंने उस खाली टाइम में ही ये बुक लिखी थी और उसका जब मैंने रीज़न को पूरा अच्छे तरह से एनालाइज़ किया, वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आज। तो मैंने पाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करियर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो आपके करियर को आगे लेके जा सकती है, प्रोफेशनल करियर को। सबसे पहली चीज़ है आपकी स्किल्स। आपका जो हुनर है वो कितना है, कैसा है आपका हुनर। दूसरा है आपके कनेक्ट्स, जिनको आप कनेक्ट समझते हो, क्या वो आपके कनेक्ट हैं। मैं किसी दोस्त के साथ में बैठता हूँ, वो मेरा कनेक्ट तो है, बट क्या वो मेरी हेल्प कर सकता है, कभी प्रॉब्लम आएगी। सो वन इज़ योर स्किल्स एंड सेकेंड वन इज़ योर कनेक्ट। दीज आर द 2 things विच कैन हेल्प यू इन सेलिंग थ्रू द बैड टाइम्स और कैन हेल्प यू इन डीलिंग विद द फेलियर इन योर करियर। एंड वॉट इज़ द थर्ड थिंग, एनी गेस? Intent. या इंटेंट इज़ तो बेसिक फंडामेंटल है ही, एब्सोल्युटली। माइंडसेट, इंटेंट, विजन, कंसिस्टेंसी तो अभी तो आप जब मतलब मार्केट में हो। ऑप्टिमिज्म, या दीज आर ऑल इंटेंट, राइट। इंटेंट, ऑप्टिमिज्म एक्सेट्रा, दिस इज़ तो बेड रॉक है। अगर वो आपका चला गया, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस चला गया आपका, कि आपको लगा कि ये हो नहीं सकता, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बट थर्ड थिंग इज़ बेसिकली लक। आपके पास में आप लकी भी हो सकते हो, स्किल नहीं है, कनेक्ट नहीं है, लेकिन लक है आपके पास में। स्किल है, कनेक्ट नहीं है, लक है। स्किल नहीं है, कनेक्ट है और लक है। तो लक को लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। लक अपने हाथ की चीज़ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छे से स्किल्ड हैं और आप ट्राई करते रहेंगे तो चांसेस आर दैट यू विल बी मोर लकी, राइट। सो लक को मैंने इसीलिए इक्वेशन से बाहर कर दिया और लक के ऊपर मैंने ना तो मैंने बुक में लिखा है, ना मैं आज आपसे कुछ खास शेयर करूंगा। मैं आपसे आज बाकी 2 जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करूंगा, बिकॉज लक आई फील इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। इफ़ वी improve ourselves on the skill side and our connect side, chances are that we will be more lucky. You are with me? फॉलो कर रहे हो ना? तो बोर हो जाओगे तो बता देना कि अभी समझ में नहीं आना, बंद हो गया है, ठीक है। सो इसमें भी जो आज मैं आपसे अगले 15-20 मिनट बात करने वाला हूँ वो स्किल्स की बात करने वाला हूँ। और स्किल्स को मैंने एनालाइज़ किया कि उस टाइम पे 2017 में मेरे पास में करीबन 20 साल का एक्सपीरियंस था।
20 years of corporate experience and handling multiple teams across the country, internationally also, right? तो ऐसा क्या है कि डिमांड नहीं है, मैं जा रहा हूँ लोगों के पास में, ऑटोमोबाइल कंपनीज में भी कहीं पर कोई जॉब मिल नहीं रही है, क्या क्या रीज़न क्या हो सकता है? मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत स्किल्ड समझता था क्योंकि वो दिन रात काम कर रहे हैं. सो आई then started deeply thinking about what actually a skill is, right? तो जिसको हम अपनी जॉब समझते हैं ना, जो आप आज कर रहे हैं, आप जो आज कर रहे हैं ना, हो सकता है वो स्किल ना हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन की एक ज़रूरत है, वो आप पूरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, और उसके लिए आपको एक लेवल ऑफ स्किल चाहिएगा, वो भी सही बात है. लेकिन क्या वो एक ऐसी स्किल है जिसमें कि आप भरोसा कर सकते हैं? क्या वो एक ऐसी स्किल है जो आपको यहाँ बैठे हुए 50 लोगों में से अलग डिस्टिंक्ट करती है? उसके लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे. मेरे को आप सबके पास में एक पेन और पेपर चाहिए. मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप अपने आप को सेल्फ रेट करिएगा उस पर. स्मॉल एक्सरसाइज. एक पेन पेपर चाहिए, सिर्फ डायरी, मतलब सिंपल 1 पेज इज गुड इनफ. यू नीड पेन? व्हाइट बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड इस पे लिख सकते हैं. व्हाइट बोर्ड पर लिख के आए, दिख रहा है क्या? ऐसा है ना, कर्टन बंद करो. राइटिंग बोर्ड लेकर होते ना. हो जाएगा, इतना कोई बहुत ज़्यादा देखने का काम नहीं है, मतलब हल्का सा भी दिख जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. सो अभी थैंक यू, थैंक्स. सो अभी क्या करेंगे हम लोग, जो 7 ट्रेट्स ऑफ अ स्किल है, ठीक है, अपने को सेल्फ रेटिंग करनी है. छुपा के कर लेना ताकि पड़ोसी को दिखाई ना दे कि क्या आपने अपने आप को रेट किया है, ठीक है. आप जो भी काम करते हैं ना, वो एक स्किल होगा. कोई अगर वेबसाइट बनाए तो वेबसाइट डिज़ाइन, कोई अगर डिजिटल मीडिया प्लान बना रहा है क्लाइंट्स के लिए तो वो डिजिटल मीडिया प्लानर हो गया. लाइकवाइज, राइट, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू थिंक इज़ योर स्किल, जस्ट राइट इट ऑन द टॉप ऑफ द पेज. ओके, एंड देन वी विल टॉक अबाउट 7 थिंग्स विच आई विल टेल यू दैट दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रेट ऑफ द स्किल. अगर आपके अंदर है और कम है, ज़्यादा है, आप अपने आप को 10 में से रेट करिएगा. बिटवीन 1 and 10, 1 इज़ वेरी लो एंड 10 इज़ द हाईएस्ट. आप उसके चैम्पियन हैं उस चीज़ के, स्किल के नहीं, उस स्किल के जो 7 ट्रेट बताऊंगा मैं आपको. ऑल राइट, सो आई विल डू इट विद यू एंड आई विल टॉक अबाउट, से आई एम अ सेल्स मैन, सो आई एम टेकिंग माई स्किल एज सेल्स. सो पहला ट्रेट है प्रोफिशिएंसी. मेरे को कितना आता है उस स्किल के बारे में, मैं कितना प्रोफिशिएंट हूँ, ठीक है. प्रोफिशिएंट से मतलब है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको थोड़ा सा हट के. कितने लोग कुकिंग करते हैं यहाँ पर? मैं भी करता हूँ. कितने लोग बेकिंग करते हैं? सपोज केक वेक बेक करना जानते हैं? अच्छा चलिए ठीक है, कई लोग करते हैं. सो केक को बेक करना एक बात है, और केक की फैक्ट्री खोल लेना या बेकरी शॉप खोल लेना एक दूसरी बात है. घर में हम सब केक बनाते हैं ओवन में, मतलब हमारे घर में हम नहीं बनाते, हमारी मदर, सिस्टर, वाइफ बनाते हैं, तो केक बन जाता है एक टाइप का. लेकिन क्या वो मैं एज अ बर्थडे केक का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ उस केक के बेसिस पे? सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोफिशिएंसी. केक बनाना आता है, हाँ, क्या आप उसमें प्रोफिशिएंट हो? उसका एक लेवल होगा 1 से लेके 10 के बीच में. तो आप जो भी आपने अपनी स्किल लिखी है टॉप ऑफ द पेज पे, उसको आप प्रोफिशिएंसी लेवल पे देखिए कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है. जैसे सेल्स में प्रोफिशिएंसी में आई एम गिविंग माई सेल्फ 6. सेकेंड इज यूनिकनेस. आपकी जो वो स्किल है, क्या वो बहुत यूनिक है? यूनिक दैट मीन्स, एक होता है कुक, जो प्रोफेशनल कुक है मान लीजिए, ठीक है, जो रेस्टोरेंट्स में खाना बना रहा है, वो एक
आप देखेंगे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक कुक है जो जैपनीज़ खाना बना रहा है इंडिया में, सो दैट मेक्स इट वेरी वेरी यूनिक स्किल. सो व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर यूनिकनेस, स्किल की यूनिकनेस कितनी है, ठीक है. सो सेल्स में मैं अपनी यूनिकनेस ऑफ सेल्स में मैं अपने आप को दे रहा हूँ 1 नंबर, क्योंकि मैं जो सेल्स करता हूँ मुझे लगता है कि वो एक नॉर्मल सेल्स ही है, चाहे वो मैं कार बेच रहा हूँ, चाहे मैं वो सीमेंट बेच रहा हूँ, ठीक है. थर्ड इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्वायर. इसका मतलब ये हुआ कि कल को कोई नया कॉलेज से पास आउट बच्चा अगर आपके पास इस कंपनी में आता है, तो जो आप काम कर रहे हैं उसको कितना टाइम लगेगा वो सीखने में. इज़ इट डिफ़िकल्ट टू एक्वायर. कोई सपोज पावर पॉइंट में बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाता है, राइट. सो इज़ इट डिफ़िकल्ट टू एक्वायर? प्रोबेबली नो, वेरी इजीली. मैं एक छोटा सा कोर्स करूँगा, 3 दिन 4 दिन का, 15 दिन प्रैक्टिस करूँगा, आई विल बी एट सम 80-90% लेवल ऑफ समवन हु क्लेम्स दैट दे आर एक्सपर्ट ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स मेकिंग, ठीक है. सो सेल्स के लिए मेरा, क्योंकि अब 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया या 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया, सो डिफ़िकल्ट टू एक्वायर में मैं अपने आप को 5 मार्क्स देना चाहूँगा. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, येस, समवेयर इन बिटवीन. थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, कस्टमर की साइकोलॉजी समझने में टाइम लगेगा, सेल्स की साइकिल को कैसे पूरा करते हैं उसमें टाइम लगेगा, तो एक बीच की सी चीज़ है. आप अपनी अपनी स्किल्स को भी रेट कर लीजिए. बी ट्रू टू योर सेल्फ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी सीन बाय एनीवन, बट अपनी आप अच्छा लिखिएगा. फोर्थ इज़ फियोपोली. फियोपोली जैसे ये मेरा ही वर्ड है बनाया हुआ, जैसे मोनोपोली होती है कि मेरे को ही आता है ये तो और किसी को आता ही नहीं है. बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये चीज़ आती है. क्या आपके पास में जो स्किल है, क्या वो ऐसी चीज़ है जो मार्केट में लोगों को आती ही नहीं है, किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है, आप बहुत यूनिक है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपकी इंडस्ट्री का. आप में से सोचता है कुछ लोग उस टाइम पे रहे भी ना हो, मतलब पैदा भी ना हुआ है. Y2K आया था, उस टाइम पे एक मेजर गैप आ गया था बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड. सप्लाई बहुत कम लोगों की थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी. Y2K जब प्रॉब्लम आई थी, राइट, इन लेट 90s एंड इट कंटिन्यूड टिल अर्ली 2000s. Y2K प्रॉब्लम ख़त्म हुई, जितने भी Y2K बेस्ड इंजीनियर्स थे या डेवलपर्स थे वो सारे के सारे रिडंडेंट हो गए ओवरनाइट. Y2K प्रॉब्लम ख़त्म, कुछ और आता नहीं था, आप ख़त्म हो गए. लेकिन उस टाइम पे अगर मैं 98-99 की बात करूं, जब प्रॉब्लम Y2K की लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, सो जितने लोगों को आता था देवर इन वेरी हाई डिमांड, बहुत कम लोगों को वो चीज़ आती थी, ठीक है. आप अपनी अपनी इंडस्ट्री में जो भी आप काम कर रहे हैं, एक बार अपने आप को इवैल्यूएट करके देखिए कि क्या मार्केट में वो बहुत यूनिक है जो चीज़ आप कर रहे हैं और लोगों के पास में नहीं है, या बहुत कम लोग अवेलेबल हैं उसके लिए. फिफ्थ इज, डू यू नीड अ लाइसेंस टू डू दैट, या सर्टिफिकेशन चाहिए आपको. जैसे फॉर सेल्स जॉब, सॉरी, फियोपोली में मैं अपने आप को फिर से 5 दे रहा हूँ. लाइसेंस चाहिए कि आपको अपना काम करने के लिए. जैसे एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी पढ़नी ज़रूरी है, लेकिन एक सेल्स के बंदे को सेल्स के लिए कोई कोर्स ना किया हो, ज़ीरो पढ़ाई करी हो, तो भी वो सेल्स कर सकता है. एम आई राइट? लेकिन सीए का काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, तो आपको सीए करके ही करना पड़ेगा, सीए करनी पड़ेगी उसके लिए. एलएलबी, आपको एलएलबी करके ही आप लॉयर बन सकते हैं, लेकिन एक सेल्समैन के लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है. तो क्या हुआ इस केस में, मैं अपने आप को, मेरे को 1 ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ऐसा काम करता हूँ जो कोई भी कर सकता है. ना कोई एज चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, और ना ही कोई डिग्री चाहिए. कोई भी सेल्समैन हो सकता है. एनी इलिटरेट कैन बी सेल्समैन, राइट. बट for practicing medicine you have to be a doctor, for practicing accounts you have to be chartered accountant, LLB. So just see what kind of certifications you have for the skills that you think that is your skill. Sixth is proven track record. आपकी जो स्किल आप कह रहे हैं कि आपकी वो स्किल है, उसका कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस है और
कितना आपने ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। आप लोग सब यंग हैं, अभी साल 2 साल 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग 5 साल 6 साल वाले एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। तो इस पे मेरा एक सजेशन भी है कि जो ये ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पीछे जाकर बदल नहीं सकते, वो आप रोज़ क्रिएट करते हैं और रोज़ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट कर सकें, ताकि आप 8 साल 9 साल 10 साल बाद अपना करियर में आप देखेंगे फॉर ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली, देयर इज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड दैट यू हैव क्रिएटेड एंड दैट इज़ कॉल्ड एज वैलिडेशन ऑफ स्किल। स्किल तो है, लाइसेंस भी है, FIO पोली में भी है, प्रोफिशेंसी भी है, बहुत डेप्थ है आपकी स्किल में, यूनिकनेस भी है, सब कुछ है, क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छी करी हुई है या आपको आता है। लेकिन क्या आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रूव करके एक रिकॉर्ड बनाया है अपना? दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वट एवर यू विल क्लेम कि आपको आता है वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड से प्रूव होता है, राइट? मतलब यशस्वी जायसवाल का नाम सुना है सब लोगों ने? ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्कोर, टेक्निक, क्रिकेट खेल रहा है बढ़िया, लेकिन अब उसको अगर नेक्स्ट तेंदुलकर बनना है तो उसको अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाना होगा। तो उसकी जो अभी तक की स्किल्स हैं उसको वो वहाँ ले आई हैं कि वो पिच पे खड़ा हुआ है, इंटरनेशनल इंडिया की जर्सी में बॉलिंग हो रही है सामने से, लेकिन अगली बॉल पे उसको शॉट लगाना है, ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है, राइट? सो आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? इसमें मैं अपने आप को 10 में से 10 दे सकता हूँ। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड एज अ सेल्समैन बहुत बढ़िया था। आई नेवर मिस्ड माई टारगेट्स। आई एम अ वेटरन ऑफ 240 मंथ एंड्स। हमारे ना मंथ एंड की साइकिल होती थी ऑटोमोबाइल में, मंथ एंड पे क्या हुआ, टारगेट हुआ कि नहीं हुआ। तो 240 मंथ एंड मैंने अपनी लाइफ में देखे और 240 के 240 हमने टारगेट हिट किया है। सो उस बेसिस पे मैं अपने आप को एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना सकता हूँ। लास्ट इज 7th इज हाउ लेटेस्ट आर यू? क्या अपग्रेडेशन, आप कितना अपग्रेडेड है अपनी स्किल्स में? हो सकता है आपने जो आप काम कर रहे हो ना, वो आपने 4 साल 5 साल पहले पढ़ाई करी हो उसकी, और ज़माना बदल गया है। AI ML हो सकता है आपने उतनी डीप में ना पढ़ा हो जो अभी चल रहा है, चैट GPT आ गया है, राइट? मेरे को तो इन टूल्स के बारे में थोड़ी सी लिमिटेड जानकारी है, बट ये जो टूल्स हैं, क्या मैं इस पर अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ? क्या मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको यूज़ करके अपने काम को एफिशिएंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकता हूँ? क्योंकि एक 20 साल का बच्चा जो इस वक्त कॉलेज में पढ़ रहा है ना, वो चीज़ें पढ़ रहा है और वो कल को आपके बराबर में आके खड़ा होने वाला है, जहाँ पर वो क्लेम करेगा कि जो आपका बंदा कर रहा है उससे हाफ सैलरी में परहैप्स मैं उससे बेटर काम कर सकता हूँ, मेरे पास लेटेस्ट टूल्स और टेक्निक है। सो जैसे एक डॉक्टर अपने आप को अपग्रेड करता रहता है कि नई मेडिसिन क्या आ रही है, नई रिसर्च क्या हो रही है मेडिकल फील्ड में, जैसे एक लॉयर अपने आप को अपग्रेड करता रहता है कि क्या नए लॉज आ रहे हैं, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता रहता है कि क्या नए टैक्स के लॉज आ रहे हैं, क्या GST में बदलाव हो रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स का, जहां हम कॉन्शियसली सोचते ही नहीं है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, जो चल रहा है चलने दो। एंड आई हैव सीन माई सेल्फ सिटिंग इन अ रूम विद यंगस्टर्स, दे आर सजेस्टिंग समथिंग एंड आई एम जस्ट रिजेक्टिंग इट, नहीं यार ये सब काम नहीं करता है। एंड देन आफ्टर 3 months आई एम सेइंग नहीं वो काम करता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था। वो सही कह रहा था लेकिन मेरे को पता नहीं था, तो आई एम रिजेक्टिंग देयर आइडियाज़, राइट? आई विल गिव यू वन वेरी एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन इंडस्ट्री। आई वॉज हैंडलिंग अ बजट ऑफ अराउंड से कम 8 तो शुरू करो डिजिटल पे, नहीं किया, अटके रहे न्यूज़पेपर में, कोई इंक्वायरीज आ नहीं रही है, पैसा बह रहा है, कंपटीशन जहाँ पर कि लोगों ने अपने आप को अपग्रेड कर रखा था, दे अपग्रेडेड देमसेल्फ, स्टार्टेड डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। शुरू में नहीं आया रिजल्ट, ठीक है, कस्टमर्स भी हैबिचुअल नहीं होते, बट फिर आना शुरू हुआ। सो दैट वाज अ वेरी क्लासिक केस ऑफ मी नॉट अपग्रेडिंग माई सेल्फ एंड देन पेइंग द प्राइस फॉर इट। सो आप क्या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं रेगुलरली, कॉन्शियसली? ठीक है, आप लोग बहुत सारे यंग लोग हो, ये चीज़ें थोड़ी आपको लगता है टफ है यार, कौन पढ़ेगा, पढ़ तो लिए था, अब तो नौकरी पैसे कमाने और एंजॉय करने का टाइम है। उसी की बात कर रहा हूँ मैं भी पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ, मैं भी एंजॉय करने की बात कर रहा हूँ, मैं भी अपने करियर को प्रोलॉन्ग करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये वो चीज़ है, अपग्रेड करना इस वक्त बेटर है, बजाय 5 साल बाद एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पर गैप बहुत बढ़ चुका है और आपके पास अब मौका नहीं है, फिर वही मिड लेवल पे खड़े रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? सो अपग्रेड योर सेल्फ। आई कैन कॉल माई सेल्फ, काफ़ी मॉडर्न आउटलुक से हम चलते हैं और यंगस्टर्स जो चीज़ें लेके आते हैं उसको अडॉप्ट भी करते हैं, और ये दिमाग में रखते हैं कि ये जो यंग बंदा आ रहा है ये भी मेरे ही एक तरह का स्किल का पार्ट है, क्योंकि जो चीज़ मेरे को नहीं पता ये भी कॉलेज से लेके आ रहा है। सो आई विल हियर
एंड आई विल लर्न फ्रॉम दैट पर्सन, आई विल सी द मेरिट। लेटेस्ट इसके पास है, क्योंकि मेरे पास में हो सकता है कुछ अलग टाइप की विजडम जरूर है, लेकिन लेटेस्ट इसके पास है टेक्निक, मैं सीखूंगा इससे। सो आप अपना देखिए कि आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं 7 स्किल के ऊपर, हमने स्कोरिंग कर ली है। मैं अपना टोटल करता हूं, आप सब अपना टोटल करिए। 5, 12 और 5, 17, 18, 10, 28, 29। मेरे आए हैं 35 में से 70, सॉरी 70 में से 35। ऑल राइट, तो हमने अपने आप को स्किल्स में रेट कर लिया। एनीवन हैविंग मोर देन 60? ठीक। एनीवन हैविंग मोर देन 50? वेरी गुड। सो यू आर ट्रू टू योर सेल्फ बाय एंड लार्ज। लिटमस टेस्ट तो यही था कि अगर 50 और 60 से ऊपर अगर कोई है तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली, आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऐसे ही होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली थोड़ा ओवर एस्टिमेट है अपने बारे में। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। दूसरी डायमेंशन जो है वो स्किल्स के साथ में जो जुड़ी हुई है वो है आपकी जो स्किल है उसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है। कमर्शियल वैल्यू मतलब मार्केट में डिमांड कितनी है, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आई मे बी से वेरी डिसेंट सिंगर, बहुत अच्छी मेरी गाना मेरे को आता है मान लो और गाना हर एक को नहीं आता है तो यूनिक भी है, मैं उसमें प्रोफिशिएंट भी हूँ, बहुत कम लोग गाना गाते हैं, फ्यू पोली भी है और लाइसेंस तो वैसे नहीं चाहिए इसके लिए, तो कोई और भी गाना गा सकता है, तो उसमें मैं अच्छा स्कोर नहीं करता हूँ। बट कुल मिला के जो मेरे गाने की क्षमता है, क्या उसकी कोई मार्केट वैल्यू है? मेरे हिसाब से उसकी ज़ीरो मार्केट वैल्यू है। कोई मेरे को फिल्मों में तो गाना गाने के लिए चांस देगा नहीं कि मैं उसमें पैसे कमा सकूँ, करियर बना सकूँ। शौकिया गाना गा सकते हैं। सो आप जो काम कर रहे हैं उसकी कमर्शियल वैल्यू को आप सिर्फ 4 में से एक पैरामीटर पे रेट कर दीजिए, वेरी हाई, हाई, लो और वेरी लो। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्किल लें, हो सकता है आपके पास में 2 या 3 स्किल हो, उनमें से एक बहुत हाई हो, एक लो हो, एक वेरी लो हो। जस्ट रेट द कमर्शियल वैल्यू ऑफ योर स्किल, वेरी हाई, हाई, लो एंड वेरी लो। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो वो वेरी लो है। मार्केट में ठीक है हम भी कर लेंगे, बहुत लोग कर रहे हैं, तो लो। बहुत ही हाई डिमांड है, भाई कोई मिल जाए ऐसा जिसको ये आता हो, वेरी हाई। लाइकवाइज थोड़ा सब्जेक्टिव है, अपने हिसाब से आप उसको करके एक ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसमें आप अपने आप को प्लॉट कर दीजिए। बड़ा सिंपल है ये करना। ये 0 है और ये 70 है, तो 70 में से जो आपका स्कोर आया है बीच में 35 है, जैसे मेरा आया है, और यहाँ पर वेरी लो है और यहाँ पर वेरी हाई है, यहाँ पर कहीं पर हाई है और यहाँ पर कहीं पर लो है। तो मेरी जो ये सेल्स की जो डिमांड है मैं इसको हाई में रखता हूँ और स्कोर जो आया है मेरा वो 35 आया है, तो मैं हाई यहाँ है और 35 यहाँ है, तो मैं करीबन यहाँ पर हूँ। आप लोग भी बना लीजिए 2x2, मतलब एक स्क्वायर, और उसको बीच में से क्रॉस कर दीजिए। लेफ़्ट एक्सिस पे आपका बेसिकली ट्रेट के 70 में से स्कोर है वो है, और वाई एक्सिस पे आपका नहीं, वाई एक्सिस पे आपका स्कोर है ट्रेट में से 70 में से, और एक्स एक्सिस पे आपका कमर्शियल वैल्यू ऑफ योर स्किल है। अब अपने आपको प्लॉट कर लीजिए। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट है मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके आगे आपको मैं सेल्फ इवैल्यूएशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस स्क्वायर में आए हैं जहाँ पर कि स्कोर आपका 35 से 70 के बीच में है और आपकी जो स्किल है वो हाई और वेरी हाई के बीच में है, ये जो टॉप राइट स्क्वायर है, तो आपके पास में एक ऐसी स्किल है जिसको आप स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं। आप अपने आप को स्पेशलिस्ट
और अपनी स्किल को एक स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं अगर आप उसमें आए हैं, ठीक है। अगर आप टॉप लेफ्ट में आए हैं तो ये एक डिल्यूजन है। डिल्यूजन का मतलब हुआ कि आपके पास में स्किल तो बहुत बढ़िया है लेकिन उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है या बहुत कम है, तो वो आपका बेड़ा पार नहीं लगाएगी अनलेस एंड अनटिल उसकी अचानक से डिमांड बढ़ जाए। और वो डिल्यूजन में जो स्किल आपकी यहाँ पर लाई कर रही है, क्योंकि आप हो उसमें बहुत खिलाड़ी हो आप, ठीक है, आप खिलाड़ी हो लेकिन उसकी डिमांड नहीं है। अगर उसकी डिमांड बढ़ गई तो ठीक है, तो डिल्यूजन वो वाली स्किल हो गई। ये जो स्किल है जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में है, ना तो आपके पास वो अच्छी स्किल है ना वो मार्केट में डिमांड है। अगर आप इसमें आ रहे हो सो ये बेसिकली पॉल्यूशन है, इससे आपको दूर चले जाना चाहिए तुरंत क्योंकि ना आपको आता है और ना ही उसकी कोई डिमांड है। और चौथा है हमारा बॉटम राइट, ये आपका इल्यूजन है। यानी आप हो तो डिजिटल मार्केटिंग में और आप बहुत ही ज़बरदस्त हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, मतलब फील्ड आपका बहुत बढ़िया है और आप उसी फील्ड में हो, तो डिमांड तो है उसकी लेकिन आप अभी वहाँ पर नहीं हो। सो इस जगह को आपको अपनी मेहनत करके स्किल को बढ़ाना है और इसको आपको स्पेशलिस्ट जोन में लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड है लेकिन आपकी स्किल का लेवल जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा और इल्यूजन से आपको स्पेशलाइजेशन जोन में जाना है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ये जो एक्सरसाइज हमने अभी करी है, दिस यू शुड डू एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है, स्किल्स के लेवल चेंज हो रहे हैं, डिमांड के लेवल चेंज हो रहे हैं। कर पाए, इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आई बनाने में? हु ऑल आर इन द स्पेशलिस्ट जोन, इसमें हो सकते हैं स्पेशलिस्ट जोन में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। रेज योर हैंड्स, स्पेशलिस्ट 1 2, रेज, नो प्रॉब्लम, गुड, वेरी गुड। एंड हु आर इन द जोन ऑफ इल्यूजन? Cool, that's very nice. So one thing which I have learned in my small career is that be true to yourself, never lie to yourself. That is all going to, I mean, that is the first step of, this is knowledge, and second is acceptance. If I have knowledge and if I accept it कि मेरा level आज ये है, then only I can improve. मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एक बार बैठिए सब लोग ऐसे, सभी लोग एक बार ऐसे कर लीजिए, ठीक है, करिए सब लोग, कर लिया सबने? मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर है और राइट हैंड नीचे है, ठीक है, उल्टा करिए। कोई तकलीफ हुई ना? सबको तकलीफ? व्हाट इज़ दिस तकलीफ? क्या कोई बायोलॉजिकल रीज़न है? किसी का राइट हैंड ऊपर होता है, किसी का लेफ्ट हैंड ऊपर होता है और चेंज करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि कोई आदमी अपना हाथ ऐसे क्यों रखता है, ऐसे क्यों नहीं रखता। किसी का राइट हैंड ऊपर होता है, किसी का लेफ्ट हैंड ऊपर होता है। जब हम पहली बार, जब 2 3 4 महीने के होते हैं, पहली बार रखते हैं तो ये ऐसे रखते हैं और तब से हम ऐसे ही रखते हैं। सो बेसिकली ये कंफर्ट जोन है हमारा, और जैसे ही मैंने इसको चेंज किया, ये मेरे लिए एक अटपटा सी चीज़ होती है, डिस्कम्फर्ट जोन हो जाता है। सो द पॉइंट, देयर आर टू लर्निंग्स फ्रॉम दिस। वन इज़ वी हैव टू गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एट टाइम्स टू डू समथिंग न्यू। कंफर्ट जोन होता है ना हमारा, ये मैंने पढ़ लिया, यहाँ मैं आता हूँ, ये मुझे काम दिया गया है, ये मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, मैं कंफर्ट जोन में जी रहा हूँ, स्किल्स पे अपने काम नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक चीज़ हो गई। और दूसरा, इसका पॉजिटिव साइड भी है कि ह्यूमन बीइंग्स आर स्लेव ऑफ देयर हैबिट्स। हम अपनी हैबिट्स के गुलाम होते हैं। ऐसे ही रखना है, जब भी रखूँगा ऐसे ही रखूँगा, हैबिट है। तो इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव साइड, अच्छी हैबिट होगी तो हमेशा मेरे साथ रहेगी, राइट? वो भी मेरे साथ रहेगी। और अच्छी हैबिट क्या है? अपने आप को अपस्किल करना। अगर एक बार आदत डाल ली, और अपस्किल करने की जिम्मेदारी देखिए आपकी अपनी है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मत देखिए। एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर रखा है आज तक, उस जनरल मोटर्स के इंसिडेंस के बाद में। वो है 10/10 का।
10% ऑफ माई इनकम, चाहे मैं कितने भी रुपए कमाता हूँ, 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, 40 कमा रहा हूँ, 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 10% ऑफ माई इनकम आई विल स्पेंड ऑन माई पर्सनल डेवलपमेंट। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बॉस, अपने CEO की तरफ नहीं देखूंगा कि वो मुझे डेवलप करेगा। ये मेरा अपना इंटरेस्ट है कि मेरे को डेवलप करना है, सेल्फिश इंटरेस्ट। और दूसरा 10 है, 10/10 का। पहला 10 हो गया 10% ऑफ माई इनकम विल बी ऑन माई ओन डेवलपमेंट, एंड सेकेंड 10 इज 10% ऑफ माई टाइम is also I am going to spend on my own personal development. 10-10 ये करना ही है, and that will make me distinct। ये 50 अगर लोग हैं तो मैं दूर से नज़र आऊँ कि मेरे पास skills, a little bit of more vintage than most of you in terms of spending career in corporates, is that जो आपका करियर है ना, उसको आपकी जो जॉब भी है ना, उसको आप एक लंबा स्पैन में देखिए। ये एक 40 साल का समय होता है। इसको आप, आज मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, आज मेरे क्लाइंट से झगड़ा हो गया, आज मेरा इंक्रीमेंट कम हो गया, मेरा प्रमोशन कम हो गया, वो उतने छोटी सी नैरो चीज़ को कभी आप अपना डिसीजन मेकिंग पॉइंट ना बनाएं। उसको एक इंसिडेंट से लर्निंग ले और आगे बढ़ जाएं। आई हैव लॉस्ट माई प्रमोशंस ऑल्सो, ऑल्दो आई वॉज अ फास्ट ट्रैकर, बट नहीं हुई इस साल प्रमोशन। साथ में एक बंदा था, उसका हो गया। सो ठीक है, वो थोड़ा बड़ा आगे पीछे चलता रहता है, बट जब भी आप अपने करियर का कोई डिसीज़न ले तो उसको एक लंबी सोच के तहत देखिएगा। जब आप एक ही जगह पे लंबे समय तक काम करते हैं तो आपको उस जगह का प्रोसेस पता होता है। हर जगह का अपना प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पता होता है। उस जगह का आपको एनवायरनमेंट में आप ढल चुके होते हैं, राइट। उस जगह पे आप एक प्रूवन इंसान है, आपको पता है कि आपको जाके अपने आप को दोबारा से प्रूव नहीं करना पड़ेगा। सो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं एक जगह पे रहने के। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, मेरा खुद का, और मैंने अपने करियर में बहुत सारे अपने कलीग्स को भी देखा है, जो लोग किसी एक छोटी सी इंसिडेंस को लेकर एस्केप करते हैं कि नहीं मेरे को तो छोड़ना है आज, या कोई एक बहुत छोटा सा सपोज 2-4 हज़ार रुपये या 5-7%, 10% का कहीं मेरे को जंप मिल रहा है, वो अगर डिसीजन पॉइंट बन जाए ना आपका करियर में, दैट इज़ नॉट द राइट डिसीजन पॉइंट। आपको करियर में शिफ्ट करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दैट शुड बी अ वेल थॉट डिसीजन। इट शुड नॉट बी अ मोमेंटरी डिसीजन, इट शुड नॉट बी अ वेरी स्मॉल वेरी नैरो साइटेड डिसीजन। इट हैज़ टू बी लॉन्गर विजन। हाँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा करियर में कुछ वहाँ पर मेजर चेंज आने वाला है। अदरवाइज स्टेइंग इन वन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग द थिंग्स। जो मैंने एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड की बात करी ना, आप बटरफ्लाई की तरह से एक फूल से दूसरे फूल की तरफ जाते रहेंगे, यू विल नेवर गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। आई हैव सीन पीपल हर 2 साल में नौकरियाँ चेंज कर रहे थे, तो एक टाइम तो लगा यार पैकेज हो गया, पैकेज बढ़ गया, पैकेज बढ़ गया, एक जगह जाके ना रुक गए, स्टेगनेंसी आ गई, सीनियर लेवल पे नहीं जा पाए, मिड लेवल पे आके अटक गए वो लोग, ज़्यादातर वो लोग। लेकिन जो लोग टिके रहे एक जगह पे, लंबा समय किया, ट्रैक रिकॉर्ड बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनको वैल्यू किया। सो वेन एवर यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग डिसीजंस अराउंड योर करियर, थिंक ऑफ अ लॉन्ग टर्म विजन। So that's all from my side. If you want to ask any question, ask any question. I hope the exercise was meaningful and useful to you. Do it more. आज आपने शायद एक स्किल का किया होगा, बट आपको हो सकता है 2 या 3 स्किल भी आती हो, तो उनको लिखिए और इवेल्युएट करिएगा अपने आप को इस तरह से। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Please. Do you have to give any suggestion or advice to everyone who gets stress or pressure while striving for their success? If अगर मैं business करना चाहती हूँ, अभी जॉब कर रही हूँ, बट बाद में मुझे business करने के बाद अगर मेरा अभी self doubt start हुआ, तो मैं business भी नहीं कर पाऊँगी. So if you have any suggestion or advice regarding this? On the entrepreneurship you are saying? Yes. Okay, okay. So मेरी जो दूसरी बुक आ रही है उस पर मैंने एक कोट यूज़ किया है। तो प्रेशर पे मैं पहले वो एक कोट सुना देता हूँ, अभी मैं बता रहा था, जब कुकर में हो बैठे तो प्रेशर से क्या डरना। तो ये जो करियर है आपका, राइट, ये एक कुकर है और इसमें प्रेशर आता रहेगा, तो उससे तो डरने की कोई बात नहीं है।
रही बात एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, और मैंने जो मेरी बुक है जो आपके यहाँ लाइब्रेरी में भी आपने रखी हुई है, इट्स हियर, ओके। सो इसमें क्या है, ये जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है इस बुक का, उसका नाम विक्रम है, और जब उसकी जॉब चली जाती है तो उसने बहुत ट्राई किया और अल्टीमेटली उसने अपना रिज्यूमे फाड़ के फेंक दिया। उसने कहा मैं अपना काम करूँगा। तो बुक में एक पॉइंट आता है 3 years later, एंड 3 years later ही बिकेम अ बेकर। वो बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स में था, और वो सब छोड़ के उसने वो बेकिंग का काम शुरू किया बिकॉज उसका पैशन था। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों सक्सेसफुल हुआ, उसने उसके बारे में 10 बातें कही है। आई विल जस्ट रीड एंड आई विल गिव यू वन कपल ऑफ लाइन्स ऑफ ऑल दीज 10, बट इफ एनीवन हैज़ द क्यूरोसिटी अराउंड इट, योर ओन बॉस इज a living example of starting his own first generation businessman, so you can take a lot of things from him also. Otherwise I will just talk about the 10 things that I have spoken in my book around entrepreneurship only, right? So first thing is, you are the CEO of your own world. जब आप entrepreneurship में जाते हैं तो बहुत सारे ups and downs आएंगे, ठीक है। और आज भी आप लोग सब CEO अपने घर के CEO हैं। कितने लोग मैरिड हैं यहाँ पर? ओह, क्वाइट अ बिट। तो आप जब अपने घर के अंदर एंटर करते हैं ना, वो घर के आप MD हैं और CEO हैं। जो आशीष शायद यहाँ पर हैं, वो आप अपने घरों में हैं, है ना? आपकी वाइफ होगी, ठीक है। तो डेप्यूटी CEO तो हैं आप फिर भी। तो आपका फेस जो है ना, वो हमेशा ज़रा खुश होना चाहिए, राइट? यू ट्रीट योर एंटायर फैमिली एज योर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, सब्जेक्ट्स। You are the emperor. You have to be positive. That is one thing as an entrepreneur also, because ups and downs will keep on coming. वो महीने के 30 तारीख को SMS का सैलरी का SMS नहीं आएगा, ठीक है। There is no place for plan B. अगर entrepreneurship करनी है तो प्लान B नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। एक पैशन है, वही करना है और वही करके रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन प्लान B नहीं बनाऊँगा मैं। प्लान B बनाने का मतलब हो गया मेरा कमिटमेंट नहीं है, मैं आज कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं जो करूँगा कॉन्फिडेंटली करूँगा, पूरा दूंगा उसको 100%। फेल होने के बाद हो सकता है दूसरी चीज़ करूँ, लेकिन आज मैं सोचूंगा नहीं उस दूसरी चीज़ के बारे में। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट प्लान। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्सेल शीट पे कुछ एक्सरसाइज करते रहते हो, अपना काम करना है तो अच्छा ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, राइट? सो जो करना चाहता है वो कर लेता है, और कोई परफेक्ट प्लान आज तक बन नहीं पाया। परफेक्ट प्लान होता तो सब लोग बिजनेस कर लेते ना। सो वेन एवर एनी वन इज़ थिंकिंग ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, देयर इज़ नो परफेक्ट प्लान, यू हैव टू बी डिसरप्टिव। फोर्थ इज़ लीड फ्रॉम द फ्रंट। ऑफिस में हमारे पास में बहुत शील्ड होती है, बॉस से पूछ लेंगे, जाके HR से बात कर लेंगे, फाइनेंस से बात कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये करना है, ऐसे करना है और ऐसे ही होगा, एंड आई विल टेक द ओनरशिप। That is how it is there. Fifth is, which is entrepreneurship में तो है ही, otherwise also, what will people say? लोग क्या कहेंगे is an important question to ignore, right? लोग क्या कहेंगे उसको एक पर्ची पे लिखो और फाड़ के फेंक दो। वो एक important question है जिसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप गए। मेरा ऑफिस कहाँ है, मैं काम क्या करता हूँ, मेरे पैसे कितने कमा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे इस बारे में, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। थिंक इट, मेक इट हैपन, राइट? सो थिंक एंड मेक इट हैपन। सो गो एंड जस्ट डू इट, नाइकी वाला। सेवेंथ इज गेट इन टू द जोन, चार्ज एंड रिचार्ज योर सेल्फ। आई विल गिव यू वन ऑफ माई ओन एग्जाम्पल। मैंने बुक में भी लिखा है, लेकिन ये मैंने हाँ। सो क्या है ना कि हमें अपने आप को ना चार्ज और रिचार्ज खुद करना पड़ता है। हम किसी एक्सटर्नल सोर्स को सोचें कि ये आके हमको हैप्पी कर देगा, वो स्ट्रैटेजी गलत है। कुछ लोग खाने से होते हैं, कुछ लोग मूवी देख के होते हैं, राइट? हर एक का अपना अपना अलग अलग जोन है। आई विल शेयर माई जोन। जब मेरे पास कोई काम नहीं था, एंड कपल ऑफ माई कलीग्स हैज़ टेकन द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ सुसाइड। नौकरी चली गई, सुसाइड कर लिया, ठीक? अभी सुबह उठ के क्या करना है, और मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अब नौकरी भी कितना ढूंढेंगे,
कितना ही नौकरी ढूंढ लेंगे, राइट। सो मैंने जो कि काम ज़िंदगी में कभी नहीं किया, मैं CEO था क्योंकि अपने घर का, अपना बिस्तरा लगाना शुरू किया। जो बेड है उसको तह लगाया, जो टॉप शीट होती है, जो अपनी बेड शीट होती है उसको खींचा, कवर लगाया, तकिए की सिलवटें हटाई और रखा। ये काम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। आशीष इज़ विटनेस टू दैट। मेरा ऑफिस का हॉस्टल का जो रूम था वो भी ऐसा बुरे हाल का रहता था, बट आई स्टार्टेड डूइंग दैट बिकॉज दैट गेव मी अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। आज रोहित गोयल ने एक काम सक्सेसफुली कंप्लीट किया, चाहे वो बेड लगाना ही था। सो यू हैव टू रिचार्ज योर सेल्फ। हो सकता है वो गाना जिससे आप रिचार्ज होते हो, वो दोस्त जिससे मिलकर आप रिचार्ज होते हो, वो खाने की चीज़, वो रेस्टोरेंट, वो चाय की खुशबू, कुछ भी हो सकता है वो, बट इट इज़ योर ओन ड्यूटी टू रिचार्ज योर सेल्फ। बेटर नॉट बिटर। तो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे निकलेंगे तो आपको बहुत सारे बिटरनेस का सामना करना पड़ेगा। उससे सोचा था ऑर्डर आएगा, वो तो मेरा रिश्तेदार है, नहीं दिया। वो फ्रेंड है, उसने कहा था वो फ्री में कर देगा, नहीं किया। उससे मैंने ये हुआ था, उससे मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, नहीं हुआ। मैं वहाँ गया, उसने पैसे ले लिए, काम बहुत ही घटिया करके दिया वेंडर ने, राइट। ऑल दिस इज़ गोइंग टू हैपन। हैव द एपिटाइट ऑफ एब्जॉर्बिंग इट एंड बिकमिंग बेटर नॉट बिटर। हम लोग नॉर्मली कड़वे हो जाते हैं ऐसे में, राइट। वही नहीं होना, अपने को बेटर होना है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। आप एज अ एंटरप्रेन्योर आप देखेंगे कि आपके हाथ में बहुत कुछ कंट्रोल में होता ही नहीं है। कस्टमर ने ऑर्डर नहीं दिया, बोला था देगा 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 देगा, मैं उसके पास में 5 बार गया, आज तो देना ही था, नहीं दिया। सो आई विल टेल माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब कोई काम नहीं था, और ये जो बुक का हीरो था, इसका भी बिजनेस धीरे धीरे चल रहा था, कभी नहीं चल रहा था, कभी बन रहा था, कभी नहीं बन रहा था, लेकिन इसके हाथ में क्या था, अपने आप को फिजिकली फिट रख सकता था वो। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन समथिंग विच इज़ वेरी मच इन ऑल ऑफ आवर कंट्रोल, अपनी खुद की फिटनेस। वो तो अपने हाथ में है ना, उसको तो कर सकते थे, तो उसने वो करना शुरू किया। जो जो मेरे हाथ में है मैं उसको ठीक करता चला जाऊंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसके लिए कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो मैं उसमें कोई बुरा नहीं मानने वाला हूँ, मैं मूव ऑन करूंगा। सो एज एन एंटरप्रेन्योर you will find a lot many obstacles, but I will focus on what is in my control. मैं दोबारा जाऊंगा क्लाइंट के पास, तिबारा जाऊंगा, दूसरे के पास जाऊंगा, कहीं और ढूंढूंगा काम। एंड फाइनली द लास्ट वन इज एम्ब्रेस द चेंज। आप बहुत बड़े चेंज का सामना करेंगे जब आप एक प्रोफेशनल से आप अपना खुद का काम स्टार्ट करेंगे। जैसे ये बंदा था, इसके पास में एक ऑफिस में ऑफिस बॉय हुआ करता था, जो कि उसकी गाड़ी का AC ऑन कर देता था जब वो जाने वाला था उससे 10 मिनट पहले, जो कि उसके लिए फ़ोटोकॉपी करता था, जिसको पता था कि वो उसकी कॉफ़ी कैसे बनानी है। पेंट्री बॉय था, जिसको पता था कि सर खाना कब खाते हैं, वो सब था। अब आप निकल गए एंटरप्रेन्योर जर्नी पे, जहाँ आपके पास ना तो अभी इनिशियल पैसे हैं ज़्यादा, और ना ही ये सब तामझाम है, राइट। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई विल एम्ब्रेस दैट चेंज। मैं उससे दूर नहीं जाऊँगा, मैं उसको पुरानी बातों को सोच के वहीं अटका नहीं रह जाऊंगा कि यार ऐसा था पहले तो ऐसा हुआ करता था, यार फ़ोटोकॉपी थोड़ी कराते थे हम तो, बोल देंगे उसको, वो कराएगा फ़ोटोकॉपी। अभी मैं जाके खड़ा होऊंगा इंटरनेट कैफ़े में, जहाँ होता है वो मेरे को शूज़ डालने के लिए बोले और एक रजिस्टर में एंट्री करने के लिए बोले, और फिर अंदर जाने दे, और फिर मैं वहाँ पर प्रिंट आउट लूँगा। सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल हैपन। और आपने बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं करी होंगी। जैसे इस बंदे ने कभी कहीं पर कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, लीज एग्रीमेंट। भाई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते थे, ऑफिस के लिए कौन एग्रीमेंट करेगा कि कैसे होता है। तो लॉयर के पास जाना, समझना, एक एक टर्म्स कंडीशंस पढ़नी, करेक्शंस करने। सो ऑल दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी पेनफुल। इट इज़ नॉट एज रोजी एज इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड कि हाँ यार बढ़िया बिजनेसमैन बन जाते हैं। सो देयर विल बी चेंज एंड यू हैव टू एम्ब्रेस दिस। सो दीज आर द 10 थिंग्स विच आई टॉक्ड अबाउट इन एंटरप्रेन्योरशिप। थोड़ा लंबा आंसर था, बट ठीक है। All right, thank you for being patient listener. First of all, thank you so much for हमें ये बताने के लिए कि life is a process of learn and unlearn. Yeah. And secondly, you should always introspect. Introspection is not regarding date, time, or your skills. It is about everything. It is a 360 degree introspection time होता है, और जो हमें regularly करना चाहिए. And thank you for letting us know कि there are no downfalls. It is always a fall which helps you to grow further. Thank you so much. Thank you team. तो इन्फ्लुएंस सब फॉर्मली बात के, बट आई टॉक अबाउट रोहित। यानी हम लोग इंजीनियरिंग में साथ में थे, तुम समझ सकते हो हम लोगों ने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा।
आई डोंट गेट इनटू दैट साइड. बट रोहित के अंदर मैं ना हमेशा आई कुड सी दैट पर्टिकुलर इंटेंस पर्सन है ना. मस्ती भी कर रहे हैं तो मस्ती करने में भी एक्सट्रीम आगे थे. हम लोग रेस्टिकेट हुए साथ में, पेपर में हमारा नाम आया. घर वालों को पता नहीं था कि हम लोग रेस्टिकेट हुए क्योंकि हम लोग अपने मामा के घर चले गए थे. तो है ना एक पॉइंट है ना कि जब भी जो भी चीज़ किया हमने वो मोमेंट के लिए पूरे हद तक के किया. आज भी वो मेमोरीज हम लोगों के पास में. देन आई मेट रोहित प्रॉबली इंजीनियर होने के बाद में हम लोग करीबन 6, 7, 8, 10 साल बाद में Correct. When he was a head of Maruti. अब आप ये समझ के रखो पूना में मारुति का हेड होने का मतलब क्या होता है कि जितने भी मारुति के स्टेशंस ये टेरिटरी में आते हैं, ही इज हेड ऑफ दैट. ओके, हमारा जब कभी भी हम लोग मिलते, जैसे रोहित ने एक और एग्जांपल दिया था कि घर पे तुम लोग सीईओ, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर तुम घर पे सीईओ बन सकते हो तो यहाँ भी सीईओ बन सकते हो. डजेंट मैटर लेबल तुमको क्या किया गया. तो जब वो हम लोग एक बिजनेस मीटिंग में बैठे थे एज अ वेंडर, तो ही वॉज डीलिंग विथ मी लाइक एज इफ कि मैं कोई वेंडर हूँ. लेकिन जैसे हम लोग उठे वापस से हमारा कम्युनिकेशन है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रोल चेंज कैसे करना है. और आई नेवर इमेजिन बाय द वे रोहित की जो लोग पीछे में एक साथ में बैठे थे, रोहित वॉज स्टैंडिंग एंड आई एम सिटिंग, बट ही वॉज टॉकिंग द एसेंस. हालांकि रोहित ने बिजनेस नहीं किया, बट ही वॉज टॉकिंग जो 10 पॉइंट्स है ना. अगर ये 10 पॉइंट्स हम लोग बिजनेस नहीं करते रियली, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, आप लीडरशिप बोल लो, आप मैनेजर बोल लो, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बोल लो, एवरीथिंग गेट्स अप्लाइड ओवर देयर. क्योंकि 10th क्लास में हम लोग जब जाते हो, 10th क्लास का सिलेबस आता है तो हमको पहले दिन नहीं मिलता है. हमको ग्रेजुएट प्रोसेस पर हमको पता है 10th क्लास में तो हमको जाना ही, अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो एवरीवन इज गोइंग टू अचीव दैट पर्टिकुलर. बट मुद्दा ये है कि हम अपना ग्राउंड वर्क कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं. तो आई थिंक ही इज टच्ड अपॉन द टॉपिक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंटली. यानी अगर कोई रोहित की बात को समझ पा रहा है और अगर इसको इम्प्लीमेंट किया तो 1 साल का अगर तुम लोग कोई MBA जाके करोगे, वो 1 घंटे के अंदर में निचोड़ मिल करके आया. किसको कैसे अप्लाई करना है, इट इज़ ऑल अप टू यू. कोई एंटरप्रेन्योरशिप में कर ले, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर ले, कोई मैनेजरियल पोजीशन पे कर ले, कोई मैनेजर बनने के लिए कर ले, कोई इंटर्न टू एम्प्लॉय बनने के लिए कर ले, बट फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. सो आई थिंक फैंटास्टिक कंटेंट रोहित फ्रॉम योर साइड. Thank you so much. तो if someone would like to just sum up couple of things कि तुम लोगों की क्या क्या लर्निंग रहोगे, बिकॉज he has to go and catch up the flight also. हम लोग अभी लंच भी करेंगे, बट अगर किसी को कुछ अपने टेक अवेज देने होंगे तो दैट वुड बी मच मच बेटर. या सर, ये जो चीज़ उन्होंने बताई ना, ट्रायंगल, ये स्क्वायर का मेथड, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी. मतलब उससे हमें एक क्लियरिटी आई कि हम हमारे स्किल अपग्रेड करके जो उन्होंने बोला एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट में जा सकते हैं. तो वो चीज़ सच में तो आई टेल यू वन थिंग, अभी मैं काफ़ी सारे MBA कोर्सेज करता हूँ. अभी जब से हर किसी का अपना अपना एक स्पेक्ट्रम होता है चीज़ को देखने के लिए. कोई एक डॉट से सर्कल बना लेता है, कोई एक डॉट से वर्ल्ड बना लेता है, कोई डॉट से प्लैनेट बना लेता है, कुछ भी करता है. जब मैं रोहित ने बोलना चालू किया था तो आई वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम कि ये मेरा क्लासमेट है. आई वॉज लिसनिंग टू हिम कि जैसे मैं तुम लोगों के साथ में बैठा हूँ, क्योंकि रोल शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो ही कैन नॉट टीच मी. तो मैं जब उसने बोलना चालू किया ना कि क्या तुम्हारे स्किल्स है, मैंने बोला मैं सेल्स करता हूँ, मेरे को मैनेज करना होता है पीपल को, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, प्रोसेस को मैनेज करना है, बिजनेस को स्केल अप करना है. और मैंने बोला कि जो 7 पॉइंट लोडिंग पे डाला तो मैंने सिर्फ सेल्स के ऊपर में डाला एंड आई कुड गेट माई गेज. लेकिन अगर यही चीज़ को मैं पीपल के ऊपर डालूंगा, माई रेटिंग वुड बी डिफरेंट. तो ये मेरे को एक होलिस्टिक लेवल पे एक अपने अप्रोच दे सकता है. तो प्रॉबली वन ऑफ द वेरी फैंटास्टिक आउटपुट जो आज मेरे को मिला है, तो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस सर्टनली. Great. Anyone else? Yeah. So the thing what you said that upskilling yourself is very important because it's the kind of generation we have nowadays. After AI coming into place, the new generation will be learning lots of things. और जो हम लोग 10 साल में भी सीख नहीं पाए, उन लोग 1 साल में सीखेंगे. And that is very important for us to understand कि upskilling yourself is so important in this generation because experience तो आ जाएगा, पर जब आपको जो स्किल की रिक्वायरमेंट है, अगर उसी एक जो नया मार्केट में आया है कोई इंसान, उसके लिए वो इजी होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एंथुसियास्टिक होगा. सॉरी, ही वुड बी वेरी अपफ्रंट और उसको पता होगा कि मार्केट कैसे चलेगा. और उस चीज़ की वजह से हमको जैसे जैसे अगर लॉजिकल की बात कर लो तो एज भी जा रहा है, तो हम लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम लोग अपने आप को अपस्किल करें. रियली अप्रिशिएट दैट पॉइंट एज वेल. Great.
So in case if someone would like to share, otherwise Rohit is very active on LinkedIn. Connect with him on LinkedIn. ये पोस्ट हम लोगों का LinkedIn पे जाएगा, तो you can share your feedback. You can be in touch with him. The best part is having a senior professional like Rohit in your network. Connect with him, understand from him. He is always accessible, always open. I'm sure. Sure, absolutely, most welcome. Any concluding line? No, thank you so much, and just want to reflect on one thing, you know, which Ashish has also touched upon. One of my managing director in Maruti once told in a meeting, we were very young at that time, कि जब आप डीलर से बात कर रहे हो या मार्केट में घूम रहे हो तो अपने आप को मारुति का MD ही समझना. So that is what Ashish was also referring to. Whenever you are coming here, think of yourself as entrepreneur, CEO of the project or the thing that you are doing. Take decisions about it just like a CEO would have taken. So it is not about the scale or size, it is all about the mindset. And I did that. When I was talking to dealer, I was either saying yes or no. There is nothing like I will come back to you. क्योंकि मैं CEO हूँ, मैं MD हूँ, मैं बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. So that kind of empowerment was given to me, and I was very happy to take it and do it. I think that if that is the culture here also, you all are basically already entrepreneur. So it is a mindset, it is not something a different entity always. Yeah. Thank you. So this is a small token of love and Oh wow. so जगह कम पड़ रही थी हम लोगों को लिखने के लिए कि क्या लिखे, but Okay. we could capture a Thank you so much, team. Thank you very much, Ashish. We'll just have the team photograph with you all. Oh, yeah. कम हमको इधर जाना होगा शायद. Okay.